current electricity. Previous class में we saw that formula for current is NEAVD. Also we got the formula for VD, which is E into E by M into tau. Current density is I by A, which is NEVD. VD is the drift speed, average speed of electron. A is area cross section. E is charge on electron, and N is free electron density. Free or conduction electron density. Its unit is per meter cube. हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी किया था ना एक. टोटल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वाज मास ऑफ द मटेरियल बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू पी. ये था शायद. और फिर उसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये आ गया था. और अगर मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी लिख दें तो ये आ जाएगा. Here P is basically the number of electrons donated per atom, number of free electrons per atom. D is density of material. Capital M is molar mass, small m is mass of conductor. Capital M is molar mass. Now we'll differentiate between materials on the basis of their conductivity. सबसे पहले लिखो conductors. Conductors are those materials. Conductors are those materials which have large number of conduction or free electrons. Conductors are those materials which have large number of conduction or free electrons. These materials offer very little resistance. These materials offer very little resistance to the passage of electricity through them.
These materials offer very little resistance to the passage of electricity through them. That is, they have low electrical resistance. That is, they have low electrical resistance. They have low electrical resistance. Examples of these materials are, examples of conductors are copper, aluminium, iron, silver. In fact, silver is the best conductor. Silver is best conductor. आजकल सिल्वर का प्राइस इस वजह से भी बहुत ज्यादा हो चुका है, बिकॉज कॉमर्शियली सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होता है. जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उसमें हर जगह कंडक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर्स में सिल्वर यूज होता है, बिकॉज दे हैव अ वेरी लो रेसिस्टेंस. इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स, लिखो. इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स which offer which offer very high which offer very high resistance which offer very high resistance to the flow of electricity through them, which offer very high resistance to the flow of electric current through them. These materials these materials these materials have very low value. These materials have very low value of current density, free electron density. These materials have very low value of free electron density. मतलब इनका जो n है वो बहुत छोटा होता है, whereas कंडक्टर्स में n की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. Examples of insulators are rubber, plastic, dry wood. All these are examples of insulators. क्या हुआ कायशा? ओके. आवाज तो आ रही है ना कायशा? नेक्स्ट, इन दोनों के अलावा देर इज अ मटीरियल इन बिटवीन देम जिसकी कंडक्टिविटी इज लेस देन दैट ऑफ conductors but higher than that of insulators, and these are called semiconductors. आगे लिखो. ऑल राइट. ओके कायशा, लिख लो जो भी बोल रहा हूँ मैं. द नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स semiconductors are those materials semiconductors are those materials which have which have lesser conductivity which have lesser conductivity than that of lesser conductivity than that of conductors, but higher conductivity than that of insulators. Higher conductivity than that of insulators. नंदिनी, मार्क्स मिल गए? मैं स्कूल ही नहीं गई.
मिल गए? आई थिंक मिल गया है स्कूल कितने? में। तो मुझे कितने? पता नहीं, मैं देखना क्या मंडे से। बात है, मिल गया तुम्हें पता नहीं है? फिर लाइक ग्रुप पे डिस्कस हो गया कि मिल गया अच्छा फिर। अच्छा, बता देना मेरे को बाद में। ओके। सी, सेमीकंडक्टर्स तो पूरा कंप्लीट एक सेपरेट चैप्टर है हमारे कोर्स में, एंड में। बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो भी आजकल प्रोग्रेस हो रही है कम्युनिकेशन में, जितने भी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं, वो सारे दे आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर चिप्स। ये वो चिप नहीं तुम खाते हो, ठीक है, ये दूसरा कंडक्टर सेमीकंडक्टर चिप है। तो इनका जो साइज है माइक्रोन्स में भी होता है, बहुत छोटे छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स बन रहे हैं आजकल। इनमें जो पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके दो कारण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स इंसुलेटर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच आर कैरिंग द करंट, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पे एक और चीज होती है, होल्स। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इन सेमीकंडक्टर, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। लिख लो, इन ए सेमीकंडक्टर, holes as well as electrons, holes as well as electrons, both are responsible for passage of electricity through them. Passage of electricity through them. फिर बोथ आर। Responsible for the passage of electricity through them. Holes as well as electrons both are responsible for the passage of electricity through them. ठीक है? शिविका लिख लिया? काव्या, तुम क्या सिर्फ आती नहीं हो तुम क्लास में, क्या एब्सेंट रहती हो हमेशा? मैं फ्राइडे को आऊंगी, बट इस बार मेरा हाफ डे नहीं था। मेरा नॉर्मली फ्राइडे को हाफ डे होता अच्छा। है इसलिए। एग्जाम्पल क्या है सेमीकंडक्टर के? 14 पीरियोडिक टेबल तुम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में। टेल मी, 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? देवेना को पता है, बता देगी सारा। देवेना बताना, तुम्हारी केमिस्ट्री सॉलिड है ना एकदम? किसकी केमिस्ट्री सॉलिड है? पर दिव्या। आपने क्या पूछा? क्वेश्चन ये था कि 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, और दो जर, चार और बताओ। जर्मेनियम, फिर एसएन, पीबी। ऑलराइट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कार्बन भी आता है, बट दीज टू मटेरियल्स, they are basically commercially used for making semiconductors. As you know, sand SiO2 होता है ना, sand से ही सिलिकॉन निकलता है। जर्मेनियम also is used for, these are elemental semiconductors। कुछ कंपाउंड भी होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इनमें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दीज आर यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर यूज नहीं होता है, बिकॉज प्योर सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बेस्ड होती है। इनकी जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मतलब लो टेम्परेचर पे दीज आर एज गुड एज इंसुलेटर्स, वेरी पुअर कंडक्टर्स। लेकिन जैसे एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, जो कि कमर्शियली हम यूज नहीं कर सकते, तो इनको डोप करते हैं। डोपिंग होती है इनमें, इनमें मिक्सिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब वो डोपिंग नहीं है जो तुम समझ रहे हो। डोपिंग का मतलब मिक्सिंग इम्प्योरिटीज। ठीक है, मिक्सिंग इम्प्योरिटीज, या तो 13 ग्रुप का एलिमेंट मिक्स करते हैं या 15 ग्रुप का एलिमेंट मिक्स करते हैं, और उससे सेमीकंडक्टर बनता है। तो हम ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दिस चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 7 मार्क्स। थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, फ्री के मार्क्स आते हैं इसमें। सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, डिवाइसेस तो अब हट ही चुका है। दे यूज टू बी अर्लियर इन द एंट्रेंस में, अभी भी थोड़ा बहुत आता है, बट सीबीएसई में नहीं आएगा। कुछ इसके एक दो छोटे जो टॉपिक हैं, जीनर डायोड वगैरह, वो आईएससी में आते हैं, लेकिन दे आर नॉट इन सीबीएसई। सीबीएसई का कम सिलेबस हो गया है। अब प्रॉब्लम ये, कम सिलेबस हो गया है तो कम मार्क्स ही मिलते हैं। पेपर टफ आता है, मार्किंग भी टफ होती है। लेकिन इस साल शायद पैटर्न चेंज हो जाए, देखते हैं क्या होता है। दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी और द एबिलिटी
of the material to allow current to pass through them. ठीक है, ये हमने फॉर्मूले किए थे, इन पर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सारा ना ये? Ohm's law. Now this is a conductor AB. This is experimental setup of Ohm's law. शायद तुम इस पे एक्सपेरिमेंट भी करोगे इस साल। This is a variable battery. Variable battery को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। वैसे तो वेरिएबल बैटरी ऐसी होती है, एक रियोस्टेट होता है, इसका जॉकी है, और ये बैटरी होती है। तो इसको ना पूरा दिखा के हम ऐसे एरो लगा देते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो ये एरो किस चीज का है? इसका मतलब पोटेंशियल डिवाइडर है ये, मतलब इससे हम वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मतलब यू कैन ऑल्सो कॉल इट वेरिएबल बैटरी, वेरिएबल वोल्टेज बैटरी। अगर वोल्टेज कम करना है ज्यादा करना है तो ये होता है। ये स्लाइडर होता है जो कि रियोस्टेट में मूव करता है, तो इससे बैटरी का वोल्टेज कम या ज्यादा कर सकते हैं। मान लो मैक्सिमम वोल्टेज 12 वोल्ट है, उसको हम 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 9, 2, 4, वट एवर यू वॉन्ट। तो दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर और a variable battery. There is a meter, there is a key also, and to measure potential difference को measure करने के लिए हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है। तो दिस इज A, so voltmeter is to measure potential difference across the conductor AB. Ammeter is used to measure electricity current. It is always connected in series. अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे। क्या हुआ? इधर आ जाओ, यहाँ तो आगे। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर करंट, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स ने क्या किया? ओम ने इसने डिफरेंट करंट को फ्लो किया सर्किट से एंड करस्पॉन्डिंग वोल्टेज को मेजर कर लिया। ठीक है, कीपिंग द एक्सटर्नल कंडीशंस और फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, इनको सेम रखा। एंड देन ही फाउंड दैट potential difference across the conductor is always proportional to the current passing through it. For different values of current, he found potential difference across the conductor, and he found that V is proportional to I. When you hटाओ the sign of proportionality, bring in a constant, and this constant is resistance. Resistance of the conductor, जो कि गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा। तो V is directly proportional to I, or V is equal to RI is the Ohm's law. So mathematically Ohm's law ऐसे लिखा जाएगा। Graphically it would be like this. This is V, this is I. तो अगर I horizontal axis पे है, V is on Y axis, then the slope of this graph will give you resistance, because slope कितना हो जाएगा? V by I. So if V is on Y axis, I is on horizontal axis, slope will give you electrical resistance. लेकिन जैसे कि सपोज अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दिस इज ग्राफ है, दिस इज ग्राफ V, दिस इज I एंड दिस इज V. Which material has higher resistance? बताना जरा। A, B, A, A, B. A. सृष्टि तुम बताओ, ये कुछ और वो सी बता रही है। सृष्टि बोलना। A. ए। नंदिनी तुम बताओ, ये लोग सब गलत बता रहे हैं।
जिसका ग्रेडियंट ज्यादा हो तो ए होना चाहिए। ए सर का ए स्लोप होगा। ए का स्लोप ज्यादा है। शिविका तुम बताओ। सर आईवी ग्राफ है तो ए होगा आंसर। हाँ, मैंने यहाँ पे ना एक्सिस चेंज कर दिया, ठीक है। आई ऊपर है, नीचे वी आ रहा है। तो इफ यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स अगर मैं वोल्टेज कांस्टेंट कर देता हूँ तो किसका स्लोप ज्यादा है? बी का स्लोप ज्यादा है, मतलब बी में करंट ज्यादा है। तो गिवन वी, बी में करंट ज्यादा मतलब बी का रेजिस्टेंस कम है। उल्टा हो गया ना ये। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर एंड बी इज लेसर। बिकॉज आई को वाई एक्सिस पे किया हुआ है। देवीना समझ में आ रहा है? नाविका, कायशा, ठीक है। यस तो सर। अक्सर ये एमसीक्यूज में आता है। समय तुम्हारे कुछ आया था ऐसा? तो अब इसका स्टेटमेंट लिखो, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, like pressure, temperature, potential difference across a conductor, potential difference across a conductor is directly proportional to is directly proportional to the current passing through it, directly proportional to the current passing through it. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इट बी स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ ग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, करंट को भी बढ़ाते जाएं, तो कई बार क्या होता है कि at a very high value of voltages the graph slightly deviates, थोड़ा स्ट्रेट लाइन पास से डिविएट हो जाता है। मतलब एट हायर टेम्परेचर the graph may not be inclined straight line because as you increase temperature of a conductor उसका रेसिस्टेंस चेंज होने लगता है। इसलिए था कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। द केस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वुड इंक्रीज। तो बेसिकली मेरे ख्याल से ग्राफ ऊपर की तरफ डेविएट करेंगे ना, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अगर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस हैं तो ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, अदरवाइज डिविएट लाइक दिस। बिकॉज स्लोप बढ़ जाएगा ना, तो वी बाई आई आर बढ़ जाएगा। सो आर इज इक्वल टू, आर इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कैसे डिफाइन करोगे इसको? इसका यूनिट क्या होगा? दैट यू स्टडी इन 10th क्लास, वोल्ट per ampere, and 1 volt per ampere is also called 1 ohm. If I is 1 ampere, then क्या होगा? R would be equal to V. तो यहाँ से हम किसी भी कंडक्टिंग वायर का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट व्हेन 1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू इट। किसी भी चीज को डिफाइन करना बहुत इजी है फिजिक्स में। फॉर्मूले में उस टर्म को छोड़ के बाकी को 1 कर दो। तो कैसे डिफाइन करोगे? लिखो, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इक्वल्स टू इक्वल्स टू electrical resistance of a conductor equals to potential difference across the conductor, potential difference across the conductor when
when 1 ampere of current, when 1 ampere of current passes through it, when 1 ampere of current passes through it. ठीक है, इसे स्केलर क्वांटिटी यूनिट ओम है इसका। अब एक और चीज आती है, 1 ओम कैसे डिफाइन करोगे, तुमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिफाइन किया है, ठीक है। हाउ वुड यू डिफाइन 1 ओम? डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, वापस ये फॉर्मूला ले लो। इफ V is 1 volt, current is 1 ampere, R would be 1 by 1, that is 1 ohm. लिखो एक बार इतना। If V is 1 volt, I is 1 ampere, R would be 1 ohm. तो अब 1 ohm कैसे डिफाइन करोगे वर्ड्स में? If 1 ampere current passes through a conductor and the potential difference across the conductor is 1 volt, then resistance of the conductor would be 1 ohm. लिखो, if 1 ampere, if 1 ampere current passes through a conductor, if 1 ampere of current passes through a conductor and potential difference is 1 volt across the conductor and potential difference is 1 ohm, 1 volt across the conductor, then resistance of the conductor equals to 1 ohm. Then resistance of the conductor equals to 1 ohm. ठीक है, ये 1 ohm की डेफिनेशन हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, ओमिक मटेरियल्स एंड नॉन ओमिक मटेरियल्स। ये सारा वैसे नोट्स में लिखा हुआ है बट तुम्हें पता होना चाहिए। Ohmic, as the name suggests, those materials which obey Ohm's law are called ohmic materials. लिख लो, materials which obey Ohm's law, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो V proportional to I. Materials which obey Ohm's law, ब्रैकेट में V proportional to I, capital V proportional to I, are called ohmic materials. Are called ohmic materials. All metals are ohmic. Silver, copper, gold, iron, aluminium, all these are ohmic materials because they obey Ohm's law. And in सब का ग्राफ होगा like this. IV graph would be like this. Non-ohmic materials क्या हुए, तुम्हें पता लग चुका है अब? Which don't obey Ohm's. Yes. So those materials which do not obey Ohm's law. Materials which do not obey Ohm's law are called non-ohmic materials. Non-ohmic materials कौन कौन से हो गए? Semiconductors are non-ohmic. अगर हम semiconductor का ग्राफ बनाएं, IV graph is like this. It's not a straight line. रिवर्स बायस में इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है। इसे नॉन सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक मटेरियल्स
कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ इस तरह से भी होता है। थायराइस्टर्स, थर्मिस्टर्स, मेरे सिर्फ नाम याद रखना है। सिलिकॉन, जर्मेनियम तो हो ही गए। जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो सारे के सारे नॉन ओमिक मटेरियल्स होते हैं। Now the factors on which the resistance of a conductor depends. Heading लिखो, factors on which resistance of a conductor depends. In fact, R of a wire is equal to rho L by A. किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मोर द लेंथ मोर द रेसिस्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कम डिफिकल्टी, कम रेसिस्टेंस लगेगा। लेंथ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है, बिकॉज इवन दो द मोमेंट यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सेट अप थ्रू आउट द कंडक्टर, चाहे कंडक्टर कितने लंबा क्यों ना हो। लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट, कोलाइड विद एटम, कम टू रेस्ट, अगेन एक्सेलरेट, कोलाइड विद एटम, कम टू रेस्ट। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसीलिए आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। सो इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। More the length, more the resistance of the conductor. So if you have two wires of same material having same thickness but different lengths, तो क्या होगा, जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। सेम मटेरियल के दो वायर है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट लेंथ्स, मोर द लेंथ मोर द रेजिस्टेंस। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Now you know that generally wires are cylindrical in shape. तो जितने भी वायर्स होते हैं सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ही होता है, पाई आर स्क्वायर। ये अगर डायमीटर दे रखा है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, वो रेडियस इज डी बाई 2। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई डी स्क्वायर बाय 4 और पाई आर स्क्वायर। So for given length, given material, R is proportional to 1 by A. So if you have two wires of same length, same material, the wire which is thicker has lesser resistance. थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि थिक वायर का रेजिस्टेंस तो कम है, तो व्हाई डोंट वी यूज थिक वायर्स। तुमने देखा होगा जो वायर्स होते हैं कंडक्टिंग वायर्स, उसमें जनरली बहुत पतले पतले वायर होते हैं एंड दे आर ट्विस्टेड टुगेदर। उन पे कॉपर जैसा कलर होता है, वो कलर नहीं होता, बेसिकली वो एक कोटिंग होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की। तो रादर देन यूजिंग वन थिक कंडक्टर वी प्रेफर टू यूज स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन कंडक्टर्स टुगेदर। तुमने देखा होगा किसी कंडक्टिंग वायर में पतले 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 बहुत सारे वायर होते हैं, उनको फिर ट्विस्ट किया होता है। रादर देन यूजिंग वन थिक कंडक्टर वी यूज थिन वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। हालांकि रेजिस्टेंस थिक वायर का कम होता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है उसका रीजन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। तो अगर कोई थिक कंडक्टर होता है तो करंट इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर थिक कंडक्टर होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होगा।
और जब मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सरफेस पे मूव करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट. और दे डू नॉट पास थ्रू द इंटीरियर और इनसाइड द कंडक्टर. तो स्किन इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए वी यूज नंबर ऑफ थिन वायर्स रादर देन अ थिक वायर. इसमें रो भी आ रहा है. व्हाट इज रो? रो ओवर हियर इज नॉट density of the material, here it is specific resistance or Resistivity. resistivity. Specific resistance or resistivity, which is basically property of nature of material. Specific resistance is basically property of material. So third quantity होगी, that it depends upon nature of material. Resistance of wire depends upon nature of material. उस पर भी डिपेंड करेगा. जिसका रो ज्यादा होगा उसका आर ज्यादा होगा. जैसे कि रो, इंसुलेटिंग मटेरियल का रो बहुत ज्यादा होता है. सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन में रो सबसे कम सिल्वर का होता है. मतलब इट इज अ बेटर कंडक्टर. इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑल्सो. रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे? अगर हम लेंथ 1 ले लें, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 ले लें, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? आर इक्वल टू रो एल बाय ए में. तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा रो. तो यहां से वी कैन डिफाइन रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर और ए कंडक्टर. कैसे डिफाइन करोगे? आर इक्वल टू रो को कैसे डिफाइन करोगे यहां से? रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर और ए कंडक्टर इक्वल्स टू इट्स रेसिस्टेंस इफ इट हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बात समझ में आई? लिखो. रेसिस्टिविटी of a conductor equals to resistance of a wire of the wire resistance of a wire of unit length and unit area of cross section unit area of cross section. इसको डिफाइन करने का एक और भी तरीका है. अगर मैं एक क्यूब ले लूं ऑफ यूनिट रेडियस, यूनिट साइड का, नाउ इट बिकम्स अ कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना? लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी हो गई? वो भी 1 मीटर हो गई. तो यहां से भी हम रेसिस्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं. रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड यूनिटी. बिकॉज एरिया क्रॉस सेक्शन 1 हो जाएगा, उसका लेंथ भी 1 हो जाएगी. लिखो. रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर इक्वल्स टू resistivity of a wire equals to the resistance of a cube of side unity. Of side unity. तो अगर क्यूब की साइड यूनिटी है
तो इसके दो ऑपोजिट फेसेस के बीच में जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टिविटी के बराबर होगा। यूनिट क्या होगी बताना इसका। टेल मी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी करो। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ और यूनिट भी बताओ। रेसिस्टेंस का तुम यहां से निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। वी तुम्हें मालूम है डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट तो वैसे स्टैंडर्ड वो है। तो डब्ल्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-2, करंट इज A, चार्जेस A into T, current into time. So this is the dimensional formula for resistance. M1 L2 T minus 3 A minus 2. Potential is work done per unit charge. Work done with the force into distance. Force is mass into acceleration. Force is M1 L1 T minus 2. L से multiply किया, work done आ गया. Charge होता है AT, current is A. What about resistivity? Rho is equal to RA by L. तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका। M1 LQ T यूनिट minus. यूनिट Oh, ओम मीटर है ना। ओम मीटर इज द यूनिट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे करोगे। ओम तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है। ओम का ये डायमेंशनल फॉर्मूला, उसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर दो। M1 L3 T-3 A-2, ठीक है। ओम मीटर, ओम में मालूम था ना ऑलरेडी, तो ओम मीटर हो गया। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस। लिख लो, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कंडक्टेंस। 1/ρ और 1/r। यूनिट क्या हो जाएगा इसका। ओम इनवर्स MSU. या MHO, मो। ओम को रिवर्स करके लिख दिया, ये भी नया स्टाइल है। ओम था ना, उसको मो कर दिया। ओम ओम करते रहोगे तो मोह माया से दूर चले जाओगे। सिमिलरली रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज Conductivity. कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा, छोटा सिग्मा, बड़ा वाला नहीं। But हाँ। chemistry में तो कब का होता है? क्या Chemistry में it's something else. केमिस्ट्री केमिस्ट्री है, फिजिक्स सर इज। बट है तो सेम ही चीज, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब करते हैं तब भी तो ये सब आता है। अब वो तो बात सही है तुम्हारी, तुम्हारा घर का नाम अलग है, यहाँ का काव्य है, बताया तो था मैंने तुम्हारे घर का नाम। नहीं, नहीं। देवीना का घर का नाम अलग है, यहाँ का कुछ अलग है। नंदिनी के बहुत सारे नाम हैं।
इसी तरह से सिंबल भी अलग अलग हो जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री में डिफरेंट है, फिजिक्स में भी डिफरेंट है। बेसिकली फाइनल रिजल्ट दोनों में सेम है, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये फिजिक्स में है। लेकिन उसमें केमिस्ट्री में क्या होता है कि साइन कन्वेंशन डी डब्ल्यू का डिफरेंट है, तो केमिस्ट्री में यहाँ माइनस डब्ल्यू हो जाता है। तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट वही रहता है। केमिस्ट्री में वर्क डन का साइन कन्वेंशन डिफरेंट है, फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं। तो फाइनल चीज वही आती है। तो इट इज रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और मो मीटर इनवर्स। बाय द वे काव्य, तुम्हारे घर का नाम क्या था, मैं भूल गया। बबली? काव्या ही। नहीं, हमने क्या रखा था? अच्छा, अब नेक्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। अभी तुम सिर्फ ये लिखो कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स रेसिस्टेंसेस resistance increases with increase in temperature. In conductors, resistance and resistivity both increase with increase in temperature. In conductors, resistance and resistivity both increase with increase in temperature. ऐसा क्यों होता है वो अब पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओम्स लॉ सबको मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, दैट यूजिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी derive Ohm's law, V is equal to IR और V proportional to I, ये डिराइव करना है यूजिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी। लिख लो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो इसको, 3 मार्क क्वेश्चन, यूजिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी डिराइव ओम्स लॉ। मतलब मॉलिक्यूलर थ्योरी यही है कि जब तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अक्रॉस द कंडक्टर तो इतना करंट होगा, इतनी ड्रिफ्ट स्पीड हुई, इसको यूज करके हमें ओम्स लॉ डिराइव करना है। तो आई गिव यू 2-3 मिनट्स, जो हमने ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, इनको यूज करके कैन यू डिराइव द ओम्स लॉ। करो जुगाड़, करो कुछ। सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे। इन 4 फॉर्मूले को यूज करके तुम ओम्स लॉ डिराइव कर सकते हो। करो कोशिश। तुम्हें फॉर्मूले में आई चाहिए, वी चाहिए, ठीक है। तो 1, 2 और 4 को यूज करके आंसर आ जाना चाहिए। कायशा, तुम कहाँ घूमने जा रही हो? यस सर। कहाँ घूमने जा रही हो? सर ये तो मेरे को भी नहीं पता अभी। अच्छा। संडे को जाना सर आफ्टर क्लास। हम्म। आ गया आंसर? शिविका, सम्मित,
नहीं आया। भाई आई पहली वाले फॉर्मूले में, पहली क्वेश्चन में आई आ रहा है, चौथे में वी आ रहा है, तीसरे में ई आ रहा है, बस हो गया काम मेरे ख्याल से। फोर्थ वाले से ई निकाल के सेकंड में डाल दो, और सेकंड से वी डी निकाल के फर्स्ट में डाल दो। नहीं, यहां से ई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो और फिर वी डी इसमें डाल दो, आंसर आ जाना चाहिए। स्मॉल ही कट जाएगा ना। हाँ, तो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। ई को रिप्लेस करते हैं, ई इज वी बाय एल। अब ये वी डी सब्स्टिट्यूट कर दो वन में, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी की जगह ई टाउ वी बाय एम एल। वी निकाल लेते हैं यहाँ से, आई इंटू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए इज इक्वल टू वी। देखो जरा, ये आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मैंने ब्रैकेट में क्वांटिटीज लिखी हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट है, देखो हैं, quantities inside the bracket are constant. For a given conductor, length constant है, area of cross section constant है, under constant physical relation tau constant है, relaxation time, तो that is V proportional to I। Ohm's law prove हो गया। लेकिन जब तुम उसका आंसर लिखोगे तो एक तो ये डायग्राम बना देना और हर टर्म को एक्सप्लेन कर देना। डायग्राम बनाने के बाद बड़ा सा डायग्राम, आधे पेज पे डायग्राम बना दो, कीवी लगा दो, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा ये भी शो कर दो, लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, और सारी कहानियां लिखनी है तुम्हें। कौन सी चीज क्या है, नीड टू राइट दैट, तब जाके तुम्हें 3 में से 3 मार्क मिलेंगे। L is length of conductor, V D drift speed, A is area of cross section, L is length of conductor, rho is density, resistivity, E is electric field, V is potential difference, सारा लिखना होगा। तो बेसिकली यहां से क्या पता लग रहा है, आर किसके इक्वल आ गया, आर आ गया इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ एल बाय ए। जरा इसको कंपेयर करो, आर इक्वल टू रो एल बाय ए से, इसको मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया। तो जब इसको तुम कंपेयर करो रो इक्वल टू एल, रो एल बाय ए से, तो रो कितना आ गया, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Resistivity of a conductor depends upon mass of electron, electron density, charge of electron, and the relaxation time. M by n is square tau. तो मास तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, ई भी कांस्टेंट है, एन डिपेंड करा नेचर ऑफ मटेरियल पे, टाउ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर सपोज हमने टेम्परेचर किसी कंडक्टर का बढ़ाया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इसमें आयंस हैं, जैसे सपोज कॉपर का कंडक्टर है तो कॉपर आयंस हैं जो कि फिक्स्ड हैं, they will start vibrating or oscillating about the mean position more violently because temperature बढ़ रहा है, उनकी एनर्जी बढ़ रही है। तो एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएंगी, और जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी तो टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन कम होगा, मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये कहानी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्यों बढ़ती है। लिखो उसको, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन व्हाई resistivity of a conductor, explain why resistivity of a conductor
resistivity of a conductor increases when its temperature is increased. तो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहले लिखोगे वी नो दैट, फिर ये वाला फॉर्मूला लिख देना। वी नो दैट रो इज इक्वल टू m बाय एनी स्क्वायर टाउ। रो इज इक्वल टू m बाय एनी स्क्वायर टाउ, ये वाला फॉर्मूला लिख देना। वेयर m इज दिस, n इज दिस, रो e इज दिस, टाउ इज दिस। चारों चीजों को लिख देना, पांचों चीजों। रो इज रेसिस्टिविटी, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e is charge on the electron, n is free electron density, and tau is relaxation time। लिख लिया? उसके बाद क्या करोगे? लिखो अब आगे। when temperature of a conductor when temperature of a conductor is increased when temperature of a conductor is increased, energy of atoms oblique ions atoms energy of atoms oblique ions inside the conductor So can you inside repeat when temperature of conductor is increased? energy of atoms oblique ions inside the conductor increases। तुमने पढ़ा था ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लास्ट ईयर, केटीजी वाले चैप्टर में पढ़ा था। एवरेज एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज, किसको याद है? किसी को याद है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होती है सृष्टि? याद नहीं है। नंदिनी को तो बिल्कुल पता होगा, नहीं पता होगा, इसके आया था चैप्टर ये वाला एग्जाम में। क्या चीज? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। शिविक का पता है कुछ? नहीं सर, हमारे पेपर में ही था। देवीना को पता होगा, ये तो बहुत पढ़ती है। सर नहीं, दिव्या पता है? मेरा कट गया था ये चैप्टर। चलो सबमिट, तो अपना आंसर सबमिट करो। सर सबमिट। मेरा भी कट गया था, मेरे में भी नहीं किसका आया नहीं था। कटा था? फिर नाविका का नहीं कटा होगा, दिव कायशा का नहीं कटा होगा, पक्का है। कायशा पता है? शौर्य तुम्हें पता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस is 3/2 RT। R is gas constant, K is Boltzmann constant। मतलब कहने का ये हुआ, एनर्जी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हालांकि वो गैस के लिए, बट टू मोर लेस ट्रू फॉर सॉलिड्स ऑल्सो। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर वायलेंटली अबाउट देयर मीन पोजीशंस। लिखो आगे। देयरफॉर Therefore, atoms oblique ions, atoms oblique ions start vibrating more violently, due to which free electrons will collide more frequently, due to which free electrons or conduction electrons will collide more frequently। As a result, number of collisions per second will increase. As a result, number of collisions per unit time will
इंक्रीज। अब जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, सपोज पहले 100 कोलिजन्स हो रही थी 1 सेकंड में, ठीक है, इन 1 सेकंड, तो दो सक्सेसिव कोलिजन में कितना टाइम था? 1/100, है ना? 1 सेकंड में 100 कोलिजन थी, तो दो सक्सेसिव कोलिजन में इतना टाइम था। अब मान लो कोलिजन होगी 1000 1 सेकंड में, तो दो कोलिजन के बीच का टाइम डिक्रीज हो गया, मतलब रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। जब कोलिजन बढ़ जाएंगी तो टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स विल डिक्रीज। लिख लो, एज ए रिजल्ट टाइम बिटवीन time between two consecutive collisions will decrease. So we conclude, that when temperature of a conductor is increased, relaxation time tau, ब्रैकेट में tau लिख लो, relaxation time tau decreases. So from the formula, ये वाला फॉर्मूला लिख दो, rho will, resistivity will increase, hence resistance will also increase. अब एक बार आज जो बहुत सारी थ्योरी हो चुकी है ना, इसको पढ़ लो। एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ तब तक असाइनमेंट में। लाइव असाइनमेंट लाइव क्या हार्ड कॉपी है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तुम अभी क्या बात कर, दे तो दिया था लास्ट क्लास में। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया? अच्छा, हार्ड कॉपी नहीं दी मैंने अभी तक। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन 54 करो असाइनमेंट का, 54 पेज 15। जो भी वैल्यूज दे रखी है उनको सिंबल के साथ पहले लिखो एसआई यूनिट में। जो फाइंड करना है फिर उसको क्वेश्चन मार्क एंड देन सॉल्व। गिवन क्वांटिटीज को लिखने से आधा काम तो वैसे ही बन जाएगा तुम्हारा। डायमीटर दे रखा है, मतलब 2R दे रखा है, 0.24 सेंटीमीटर। आर हो जाएगा 0.12 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, 0.12 इंटू 10⁻⁻²मीटर।
ये कौन सा वायर है? वन मैंने ले लिया। वायर वन इज एल्यूमिनियम, वायर टू इज कॉपर। They're connected in series, and the current through them is given to us 10 ampere. सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होती है। तो दोनों वायर में सेम करंट फ्लो कर रहा है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज द सेम। फाइंड करंट डेंसिटी एल्यूमिनियम वायर, कर लो। सिंपल क्वेश्चन है। जे इन एल्यूमिनियम वायर, जे वुड बी आई बाय ए। खुद से कैलकुलेशन करनी है, मोबाइल यूज नहीं करना है, ठीक है? कैलकुलेटर यूज मत करना। इसकी कैलकुलेशन बहुत है। गंदी है तो सर्फ एक्सेल यूज करो, लेकिन वो यूज नहीं करना है कैलकुलेटर। देवीना कर सकती है, शौर्य कर सकता है, इनका आईएससी है, इनको अलाउड है। और ये लोग आंसर नहीं बताएंगे। तुम देवीना, तुम भी उससे कर लो नॉर्मल। एंट्रेंस में काम आएगी कैलकुलेशन, वरना फिर जेई में प्रॉब्लम होगी। कैलकुलेशन करने की आदत डालो। यू टू फोर्स योर सेल्फ। तुम इतना कर सकते हो कि पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो, ठीक है? मैंने क्या किया, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैं पाई स्क्वायर को 10 से काट दूंगा। टू प्लेसेस और डेसिमल तक करना है। नाविका हो गया? आंसर चेक करो पीछे, असाइनमेंट के एंड में आंसर्स हैं।
डन सृष्टि? फर्स्ट पार्ट हो गया सभी का? क्या आंसर है देविना? Sir, 2.2 into 10 to the power 6. यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस? किलो किलोग्राम? मेरा 10 to the power 5 आ रहा है। 5 कैसे आएगा? 2 पॉइंट कितना हुआ? ओह सर मैंने ऐसे 2 पॉइंट दोबारा बोलो, कितना? 2.21 2 1 10 to the power 6 एम्पियर per meter square. So that is the answer for the first part. Second part करो अब इसका। Second part में you define drift speed. I equal to NAVD use करो। For the copper wire, you need to find drift speed. You can use I is equal to NAVD. N दिया हुआ है, E पता है, A पता है। इस बार तुम्हें कॉपर के वो यूज करने पड़ेंगे, कर लो। देवीना हो गया? क्या कर रहे हो? कॉपर का वो लेना पड़ेगा, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कॉपर का तुम्हें एन भी दे रखा है।
n कितना दिया हुआ है? 8.4 into 10 to the power 24. E, you already know, 1.6 10 to the power minus 19. Area would be pi r square. Pi r is 8 into 10 to the power minus 4. इस बार मैं पाई को 22/7 ले सकता हूँ बिकॉज 8.4 22/7 से कट जाएगा, ठीक है? तो मैं पाई की जगह लिख रहा हूँ 22/7। 7 से इसको काटो, 1.2। 24 एंड माइनस 19 10 टू 5 -5 ऊपर आ जाएगा, 10 टू पावर -4 10 टू पावर 8 ऊपर आएगा। एट स्क्वायर इज 64। 10 टू पावर 4 आ गया है पूरा, बिकॉज उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें कुछ, देयर इज नो अदर वे। टू से काट के फायदा नहीं है। सर हमें आई बाय ए तो पता ही है। वो तो उसका है ना। तो सेम। अच्छा ओ वो अलग है। हाँ, ओ, कि 2 डेसिमल ऊपर ले जाते हैं। इन दोनों को मैंने हटा, डेसिमल को ऊपर 100 लिख दिया, ठीक है? टेन टू द पावर 4 को ऐसे कर दो। ये आ रहा है 25 इंटू 625/66 इंटू 64। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके किया किसी ने? इसको मैं 640 बना के इसको काटता हूँ, 6 7 3 पॉइंट समथिंग का आंसर आ रहा है। 3.6 आ रहा 3.6 डिग्री सेल्सियस। है। तो 10 की पावर -4। -2 भी आ रहा है। 10 की पावर -4 भी आ रहा है। कैसे? सर ये 24 नहीं 28 है। 8.4 इंटू 10 की पावर 28 है। ये हाँ हाँ। ओके, तो 28 अगर होगा तो ये मीटर पर सेकेंड, 3.6 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 72 करो। क्वेश्चन 72।
What is the number of free electrons in a piece of silver of cross section this much? एरिया दिया है अपने को और लेंथ भी दिए रखी है 1 मीटर. एटॉमिक कैपिटल मोलर मास दे रखा है 108 ग्राम. डेंसिटी D is 105 10 to the power 2 kg per meter cube. याद रखना जब भी तुम डेंसिटी को कन्वर्ट करते हो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मच? 1000 kg per meter cube. कन्वर्जन है डेंसिटी का. assume there is 1 free electron per atom, मतलब p की वैल्यू दे रखी है 1. तुमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था ना, उससे आ जाएगा तुम्हारा आंसर. D Avogadro's number P by M. हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पीस ऑफ, मतलब कैपिटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था मास ऑफ द मटेरियल बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू पी. So this ये यूज divided होगा, by है ना. वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ, मास को हटा दो, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो. मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लो. मास इज वॉल्यूम विच इज A इंटू L इंटू डेंसिटी बाय मोलर मास एवोगाड्रो नंबर इनटू पी. सारा दिया हुआ है. जितने न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा. Can I take Avogadro's number as 6 into 10 की power 23? हाँ ले लो. वैसे 6.023 होता है. वैसे 6.023 लोगे तो उसकी आत्मा को शांति शांति मिलेगी बेचारे को. एनीवेज ये ले लो. आयशा कर रही हो ना क्वेश्चन? ये ठीक. नाविका. सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है. मोलर मास को तुम केजी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है. मोलर मास ग्राम में है, उसको केजी में कन्वर्ट करो. 108 ग्राम. कन्वर्ट दिस इनटू केजी. तो 5.83 या कुछ आ रहा है. पीछे आंसर चेक करो. सर पीछे 5.86 5.85 है. और आ रहा है. 6.023 को 6 कर दिया. हम्म. सारे पावर क्लब कर लो. -4 +2 +23 +3 डिवाइड बाई 18.
कितना आ रहा है ये 5? 5.85. So this is total number of electrons, free electrons. और अगर इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करें तो मिल जाएगी free electron density. If you divide by volume, it will give you free electron density. तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही आ गई 5.85 10 to the power 28 है ना? उसने पूछा नहीं है ये वैसे. तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power -4, लेंथ 1, तो इट इज 5.85 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब. कैपिटल एन तो प्योर नंबर है, बट स्मॉल एन वुड बी पर मीटर क्यूब. मतलब किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो 10 to the power 28 के आसपास होता है, वेरी हाई. मतलब पर मीटर क्यूब में इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. टोटल तो बहुत ज्यादा होते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन जो कि पैसेज ऑफ करंट में हेल्प कर रहे हैं, दिस इज काइंड ऑफ डेंसिटी. टेल मी वन थिंग, 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब को अगर तुम 10 to the power इसको सीजीएस में करोगे तो क्या आंसर आएगा? 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब को पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए? इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा. Divided by I अब think देख, मुझे मालूम है इसमें गड़बड़ करेंगे सब लोग, इसलिए मैंने पूछा है. ये पर मीटर क्यूब, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 की पावर. ये तो 6. हाँ तो divided by 10 to the power 6. वैसे भी सिंपल सी बात है, अगर 1 मीटर क्यूब में 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स है तो सेंटीमीटर क्यूब तो छोटा है ना, इसमें कम हो गए. इट हैज टू डिक्रीज. तो पर सेंटीमीटर क्यूब था ना, इसलिए डिक्रीज हो गया. बट दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए कंडक्टर. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेंज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ए कंडक्टर. तो कमिंग फ्राइडे तुम लोगों का टेस्ट है यहाँ पे, बाकी लोग सैटरडे को देंगे. एंड नेक्स्ट क्लास में आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर. डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, रेसिस्टेंस और टेम्परेचर पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्लस जनरल क्वेश्चंस ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी. एंडिंग द क्लास. Thank Thank you. you. Can I give it Thank on you, sir. Bye, Wednesday? sir. बाय. Thank you, sir.